يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال الله تعالى في موضع آخر إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مسلمين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. محترم حاضرین جمعہ، اللہ رب العالمین نے کلام مجید کے اندر فرمایا ایام معدودات. روزے کی فرضیت کے آیت کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایام معدودات، روزے کے یہ صرف چند دن ہیں. اللہ رب العالمین نے یہ جو الفاظ استعمال کیا ہے کہ روزے کے صرف چند دن ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً دوسرا عشرہ ہم سے گزر رہا ہے. ابھی ہم نے رمضان کا استقبال کیا، ابھی ہم رمضان میں داخل ہوئے اور پلک جھپکتے ہی ہم سے 20 رمضان رخصت ہونے والے. یہ رمضان کے ایام ختم ہوتے جا رہے ہیں. ظاہر سی بات یہ چند ہی دن ہے اور بقیہ صرف 10 دن ہمارے پاس باقی ہے. حاضرین گرامی، یہ 10 دن جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، یہ آخری عشرہ اللہ رب العالمین کے نزدیک پورے سال کے سب سے بہتر ایام اور راتوں میں سے ہیں. ان 10 رات کے اندر ہم تمامی حضرات کو یہ چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان 10 راتوں کو کیسے گزارتے تھے، آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاضت کیا تھی. ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس آخری عشرے کے اندر
सलफ़ सालिहीन सहाबा और ताबिईन का क्या तरीक़ा था, उस तरीक़े को हमको अपनाने की ज़रूरत है। हाज़िरीन गिरामी, ये आखिरी आशरा हमने कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन की निगाह में सबसे अफजल और सबसे अशरफ हैं। लिहाजा हम इंसानों को भी ये चाहिए, हम मुसलमानों को भी ये चाहिए कि ये आशरा हमारी निगाह में भी अफजल और अकरम हो, और हमारे अमाल और अखलाक से भी ये ज़ाहिर होना चाहिए कि हकीकत में हमारे नज़दीक ये आशरा बहुत ही अज़मत वाला है, बहुत ही कद्र वाला है। वरना अगर आप जैसे अभी तक 20 रमज़ान आपने गुजारा है, यही चाल चलन आपकी रही, तो आपके अमाल से, आपके किरदार से ये बात वाज़ेह होगी कि आपके नज़दीक इस आखिरी आशरे की कोई हैसियत नहीं है। आज क्या है मुसलमानों का रवैया, मुसलमानों का तरीका आखिरी आशरे में क्या है? मार्केट ज्यादा करना है, शॉपिंग ज्यादा करना है, दुकान से दुकान फिरना है, ये लेना वो लेना ये लेना, पूरी ईद की तैयारी इन आखिरी आशरों में करनी है। अरे नबी का तरीका तो देखिए, वो इमामुल अंबिया, वो सय्यदुल मुरसलीन, जिसके अगले और पिछले सारे गुनाह माफ हैं, नबी का तरीका ये था, नबी की रियादत ये थी। हालांकि आप पूरे साल अल्लाह की इबादत करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे साल अल्लाह की इबादत किया करते थे, पूरे साल आप तहज्जुद पढ़ा करते थे रातों में, पूरी पूरी रात बसा औकात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद में गुजार देते थे। लेकिन नबी जिसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ है, जो मासूम अनिल खता है, उसकी इबादत का हाल तो आखिरी आशरे में देखिए। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है कि जब आखिरी आशरा शुरू होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के आखिरी आशरे में दाखिल होते, शद्द मिज़रहु, तो अपनी कमर को कस लिया करते थे। क्या मतलब ये है कि आखिरी आशरे में दाखिल होते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से अलहदा हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया की सारी मशगूलियात को पीछे डाल देते और आप अपनी इबादत में लग जाते। हदीस के अंदर आता है वअयक़ज़ अहलहु, सिर्फ आप ही रात भर क़ियामुल लैल नहीं करते थे, अपनी बीवियों को भी जगाते थे, अपने घर वालों को भी जगाते थे। वअहया लैलहु, सबको लेकर मस्जिद में क़ियामुल लैल किया करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी कि आखिरी आशरे की पूरी पूरी रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ियामुल लैल किया करते थे, कुरान की तिलावत किया करते थे, जिक्र व अस्कार में गुजारते थे, पूरी रात इबादत में जिंदा किया करते थे। हमारा क्या मसला है? हमारा क्या मसला है? हम लोगों ने इन आखिरी आशरे को, इस आखिरी आशरे को बाजार का वक्त बना लिया है, शॉपिंग का टाइम हमने आज ही से फिक्स कर लिया है। ये ताक रातें ये नौजवानों के लिए घूमने फिरने की ये रातें बन गई हैं। ये चौराहों पे, ये होटलों पे, ये दुकानों पे गपशप करने के लिए ये रातें इन लोगों के लिए बनी है। ये ताक रातें जो इस दुनिया की सबसे अफजल तरीन रात है अल्लाह की निगाह में, इस रात के अंदर आज का मुसलमान, आज का नौजवान सिर्फ रास्तों पर फिरता हुआ दिखता है, रास्तों पर घूमता हुआ दिखता है, रात तो जागता है, रात में तो बेदारी करता है, लेकिन इबादत के जरिया बेदारी नहीं, रात में इबादत करके नहीं जागता, बल्कि ये खाने पीने की बारात निकाली जाती है। ये ताक रातें खाने पीने की रात बना ली गई है, ये ताक रातें मस्जिदों में गपशप करने की रातें बना ली गई है। ये ताक रातें तो नौजवान जागता है, लेकिन इबादत में नहीं गुजारता, रियाबत में नहीं गुजारता, कुरान की तिलावत में नहीं गुजारता, जिक्र व अस्कार में नहीं गुजारता, दुआ व मुनाजात में ये रात बेदार नहीं रहता, बल्कि गपशप करने के लिए, लहो लईब करने के लिए, खाने पीने के लिए, इसी तरह रोडों पर फिरने के लिए रात जागता है। हाज़िरीन गिरामी, क्या आपको अंदाजा नहीं कि ये रात वो रात है, ये रात वो रात है कि इस रात के खैर से अगर कोई महरूम हो गया तो अल्लाह की कसम वो अल्लाह के हर खैर से महरूम
محروم ہو جاتا ہے۔ وہ انسان بدبخت ہے، وہ انسان بدنصیب ہے، وہ انسان اللہ کے ہر خیر سے محروم ہے جو اس رات کے خیر سے محروم ہو گیا۔ میرے نبی کی حدیث ہے ان ھذا الشہر، اللہ کے رسول ذرا سوچئے اس رات کی عظمت کیا ہے، اس رات کی قدر و منزلت کیا ہے، اس رات کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ رمضان شروع ہوتے ہی میرے نبی صحابہ کو یاد دلایا کرتے تھے، ارے وہ صحابہ جو ایک ایک آیت میں پوری رات گزار دیا کرتے تھے تہجد میں، ان صحابہ کو یاد دلاتے تھے، اے صحابہ ان ھذا الشہر قد حضرکم، یہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، رمضان المبارک کا مہینہ یہ شروع ہو چکا ہے۔ وفیہ لیلۃ، یہ شروع رمضان میں پہلے دن اللہ کے رسول صحابہ کو یاد دلاتے تھے کہ مہینہ تمہارے پاس آ چکا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے، وَفِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ، ایک رات اس میں ایسی ہے جو ہزارہ مہینوں کی رات سے بہتر ہے، ہزارہ راتوں سے بہتر ہے۔ من حرم خیرہا، جو انسان، جو مسلمان، جو مرد و عورت اس رات کے خیر سے، اس رات کی بھلائی سے، اس رات کی رحمت و برکت سے محروم ہو گیا، فقد یحرم الخیر کلہ، تو اللہ کی ہر بھلائی سے، اللہ کی ہر خیر سے، اللہ کی ہر طرح کی برکت سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ ولا یحرم خیرها الا محروم، اور اس رات کے خیر سے، اس رات کی برکت سے، اس رات کے مقام و مرتبے سے وہی انسان محروم ہوگا جو اللہ کی نگاہ میں حقیقی طور پر محروم اور بدنصیب بدبخت ہے۔ بتلائیے ہمارا شمار کس میں ہوگا؟ ہمارا شمار، آج کے نوجوانوں کا شمار، آج کے مسلمانوں کا شمار کیا بدبختوں میں نہیں ہوگا؟ کیا بدنصیبوں میں نہیں ہوگا؟ کیا محروموں میں نہیں ہوگا؟ آخر ہم رمضان کے 20 ایام میں عبادت تو زیادہ، 1 گھنٹہ کم سے کم قیام اللیل کرتے ہیں، لیکن طاقتوں میں ہمارے قیام کا کیا حال ہوتا ہے؟ پونے گھنٹہ مشکل سے۔ مول صاحب 3 بجے جماعت کھڑی کرنا، 2 بجے اور 3 بجے کے اندر ختم کر دینا۔ ارے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر ہم 20 رمضان تک 1 گھنٹہ قیام اللیل کرتے ہیں تو طاقتوں میں 2 گھنٹہ قیام اللیل ہونا چاہیے۔ یہ ہم خود نہیں سمجھ رہے ہیں کہ طاقت کی اہمیت کیا ہے۔ لیلۃ القدر ہے کیا چیز؟ اس رات میں تو سب سے افضل، سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت قیام اللیل ہی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال دیکھیے، آپ جب 7 رمضان بچا، 7 دن رمضان کے بچے تھے، تو آپ 23ویں رات کو قیام کرنے کے لیے نکلے۔ اپنے صحابہ کو مسجد نبوی میں آپ نے تراویح کی نماز با جماعت پڑھائی، حتی ذہب ثلث اللیل، 1/3 رات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام اللیل تراویح پڑھائی صحابہ کرام کو، عشاء کے بعد سے لے کر مسلسل 1/3 رات تک۔ پھر 24ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نہیں نکلے۔ پھر دوسری جو طاقت ہے یعنی 25ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے حجرے شریف سے باہر آئے اور آپ نے 25ویں طاقت کو صحابہ کرام کو تراویح کی نماز پڑھائی، حتی ذہب نصف اللیل، یہاں تک کہ آدھی رات گزر گئی۔ ذرا دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ طاق راتوں میں آپ کی عبادت کا حال، آپ کے صحابہ کا حال کیا تھا؟ آدھی رات تک مسلسل آپ نے قیام اللیل کیا۔ پھر 26ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، 27ویں رات کو جو سب سے اہم رات مانی جاتی ہے، 27ویں رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25ویں رات کو جب نماز پڑھائے، ابو ذر نے کہا یا کسی دوسرے صحابی نے کہا، اللہ کے رسول ذرا صحابہ کا شوق عبادت تو دیکھیے، ذرا صحابہ کا شوق عبادت تو دیکھیے۔ کہا اللہ کے رسول آدھی رات کیا، آپ پوری رات ہم کو نماز پڑھائیے۔ اے اللہ کے رسول کتنا اچھا ہوتا، کتنا بہتر ہوتا کہ اسی طرح پوری رات ہم کو آپ قیام اللیل کراتے، تراویح کی نماز پڑھاتے۔ یہ آج کے مسلمان ہیں، یہ آج کے مسلمان ہیں۔ ہم لوگوں کو تو پورے سال 1 رات میں قیام اللیل کی توفیق نہیں ملتی، تہجد کی توفیق نہیں ملتی۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج تک اپنی زندگی میں رات کو اٹھ کر 2 رکعت بھی نماز نہیں پڑھے ہوں گے، لیکن رمضان میں پوری جماعت کے ساتھ بھی ان کو قیام اللیل بھاری اور شاق گزرتا ہے۔ یہ صحابہ دیکھیے کہتے ہیں جو پورے سال قیام اللیل کیا کرتے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول اسی طرح پوری رات ہم کو اگر تراویح پڑھاتے تو کتنا اچھا ہوتا۔ میرے نبی نے کہا اے میرے صحابی من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قیام لیلہ، جو شخص امام کے ساتھ پوری قیام اللیل کرتا ہے، پوری نماز تراویح پڑھتا ہے، عشاء کی جماعت سے
से लेकर वितर तक, तो पूरी रात उसको तहज्जुद या क़ियामुल लैल पढ़ने के सवाब मिलता है। तीसरी रात आप आते हैं, 27वीं रात को आप अपने हुजरे शरीफ से निकलते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी लंबी तरावीह पढ़ाते हैं, इतना लंबा क़ियामुल लैल करते हैं। सहाबा किराम कहते हैं कि हमको डर लगने लगा, हमको यह अंदेशा होने लगा कि आज अल्लाह के रसूल सेहरी का टाइम देंगे कि नहीं देंगे। ये है सहाबा का हाल, ये है इमामुल अंबिया की क़ियामुल लैल, ये है इमामुल अंबिया की तरावीह। सहाबा कहते हैं हमको ऐसा लगने लगा कि आज हमको सेहरी का भी वक्त नहीं मिलेगा। आप देखिए इशा के बाद से लेकर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नमाज थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुलुए फज्र तक तरावीह की नमाज पढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये ताक रात है। मुमकिन है वो शब कद्र की रात हो, मुमकिन है वो अज़मत वाली रात हो, मुमकिन है वो कद्र वाली रात हो। उस कद्र वाली रात की तलाश में, उस शब कद्र को पाने के लिए ये सहाबा का तरीका था, ये इमामुल अंबिया का तरीका था कि कहीं ये रात हमसे ऐसे ही रुखसत ना हो जाए, कहीं हम इस रात से महरूम ना हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा से लेकर फजर तक तरावीह की नमाज पढ़ाई। हमारा ख्याल है 2 बजे शुरू करना, 3 बजे के अंदर खत्म करना, घर पे जाना है, सहरी करना है। ये इबादत का हाल है हमारे। एक महीना भी हम अल्लाह के लिए नहीं गुजार सकते, एक महीना भी हम 1-1.5 घंटा क़ियामुल लैल नहीं कर सकते। आपको तन्हा नहीं करना है, जमात के साथ करना है। हाँ, मानता हूं कि तन्हा उठकर नमाज पढ़ने में मशक्कत है, लेकिन रमजान में जमात के साथ इसी वजह से तरावीह मशरूअ करार दी गई ताकि किसी इंसान को उसके नफ्स पर भारी ना लगे। जमात के साथ जो चीज अंजाम दी जाती है, उस शौक में, वो जज्बे में, देखा देखी कुछ लोग पढ़ लेते हैं कि सब लोग जा रहे हैं हम भी चलेंगे, सब लोग पढ़ रहे हैं हम भी पढ़ लेंगे। लेकिन हमारा तो हाल यह है कि जमात के साथ भी हम क़ियामुल लैल 1-1.5 घंटा नहीं कर सकते। इस रात को हम खाने पीने की रात बना देते हैं, गपशप की रात बना देते हैं। इस रात में तो होना तो यह चाहिए था कि आज तक 20 रमजान में हमने जितनी इबादत की है उतनी इबादत, बल्कि उससे कई गुना इबादत हमको इन आखिरी 10 दिनों के अंदर करनी चाहिए। आपको मैं बतला दूं कि आपने जितनी पूरी जिंदगी इबादत की है, अगर क़ियामुल लैल अगर आपको शब कद्र मिल गई, अल्लाह की कसम पूरी जिंदगी की इबादत से इस एक रात की इबादत आपके लिए बेहतर है। पूरी जिंदगी की इबादत एक तरफ, लैलतुल कद्र की इबादत एक तरफ, पूरी जिंदगी की इबादत का लैलतुल कद्र की इबादत से कोई मुकाबला नहीं है, कोई मुकाबला नहीं है। आपकी उम्र 100 साल हो, 150 साल हो, लेकिन लैलतुल कद्र की इबादत अगर आपने हासिल कर ली, लैलतुल कद्र को आपने जिंदा रखा इबादत के जरिया, कुरान के जरिया, दुआ व मुनाजात के जरिया, जिक्र व अस्कार के जरिया, तो ये समझ लीजिए पूरी जिंदगी में जो इबादत की है वो कमतर है इस लैलतुल कद्र की इबादत से। लेकिन हम लैलतुल कद्र की आज़मत को नहीं समझते, हम लैलतुल कद्र के मकाम को नहीं समझते, हम लैलतुल कद्र की आज़मत को नहीं पहचानते। हम लोगों का तो हाल ये है कि इस 10 रातों के अंदर हर तरह का तो इंतजाम होता है, हर तरह की तैयारियां मुसलमान करते हैं, लेकिन लैलतुल कद्र की तैयारी नहीं करते। लैलतुल कद्र की इबादत के लिए हम इंतजाम पहले से नहीं करते, लैलतुल कद्र के अंदर इबादत के लिए हम अब इहतिमाम नहीं करते, पहले से उसकी तैयारी नहीं करते, उसका बंदोबस्त नहीं करते। हम दुनिया की हर चीजों की तैयारी इससे पहले कर लेते हैं, लेकिन इस आखिरी आशरे के लिए हम अपने आप को अपनी तिजारत से, दुनियादारी से फारिग नहीं कर पाते हैं। यह है मुसलमानों का ताल्लुक अल्लाह से, यह है लगाव मुसलमानों का अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात से, यह है मुसलमानों का ताल्लुक रमजानुल मुबारक से, यह है ताल्लुक मुसलमानों का आखिरी आशरे से कि इस आखिरी आशरे में जहां इबादत ज्यादा करनी चाहिए थी, ये आज का मुसलमान आखिरी आशरे में इबादत पहले के बिलमुकाबिल कम कर देता है, दिन भर सोता है और रात में गपशप करता है। ये हाल है आज के मुसलमानों का रमजान के आखिरी अशरे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आता है, अरे वो नबी जो मासूम अनिल खता है, इसी रात को पाने के लिए, लैलतुल कद्र को हासिल करने के लिए पहले आशरे में एतिकाफ करते हैं,
पहले अशरे में, रमजान के पहले अशरे में एतिकाफ करते हैं, जिब्रील आते हैं, जिब्रील कहते हैं ए अल्लाह के रसूल, ए इमामुल अंबिया, ए सय्यिदुल मुरसलीन, आप जिस चीज को हासिल करने के लिए, जिस चीज की तलब में आप एतिकाफ पहले अशरे का किए हुए हैं, उसके बाद में आती है वो चीज। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे अशरे का फिर एतिकाफ करते हैं, यानी 10 से 20 तक का एतिकाफ करते हैं। अल्लाह जिब्रील अमीन आते हैं, जिब्रील अल्लाह के रसूल से कहते हैं कि अल्लाह के रसूल, ए अल्लाह के रसूल, अरे वो रात जिसकी तलाश में आप दूसरे अशरे का एतिकाफ किए हुए हैं, ये रात इसमें नहीं, उसके बाद वाले अशरे में आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करते हैं, सहाबा को मुखातब करते हैं, अरे मेरे सहाबा जो मेरे साथ एतिकाफ किए हुए थे, जरा सोचिए वो सहाबा भी आपके पीछे पीछे चल रहे हैं। आपने एतिकाफ पहले आशरे में किया, सहाबा ने आपके साथ एतिकाफ कर लिया, आपने दूसरे आशरे में एतिकाफ किया, सहाबा भी एतिकाफ में बैठ गए। जब जिब्रील आकर बोलते हैं कि नहीं, ये वो रात जिसकी तलाश में आप लोग एतिकाफ में बैठे हुए हैं, ये वो अशरा नहीं, इसके बाद का अशरा है, कुछ सहाबा घर चले जाते हैं कि आखिरी अशरे में फिर आएंगे एतिकाफ करने। अल्लाह के रसूल ने फिर कहा, ये आवाज लगाई कि सुनो, जो लोग मेरे साथ एतिकाफ में बैठे थे फल यरजे, वो अपने घरों से फिर एतिकाफ गाह में चले आए। ये तीसरा आशरा शुरू हो चुका है। इस तीसरे आशरे में वो रात आती है, वो लैलतुल कद्र की रात इसी आखिरी आशरे के ताक रातों में खुसूसी तौर पर आती है। लिहाजा जो मेरे साथ एतिकाफ किया हुआ था वो इस आखिरी आशरे में भी मेरे साथ एतिकाफ में बैठे। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल कि पूरे 30 दिन का एतिकाफ कर रहे हैं आप। क्यों? ताकि वो हमको लैलतुल कद्र की रात हासिल हो जाए, ताकि हम लैलतुल कद्र की रहमत, खैर और बरकत को अपने दामन में समेट सके। ये नबी की इबादत का हाल है। हैत आयशा कहती हैं, काना यस्तहिदु फिल अश्रिल अवाखिर मा ला यस्तहिदु फी गैरिही। आप आखिरी अशरे में इतनी मेहनत करते, इतनी इबादत करते थे कि आप साल के किसी भी दिन उतनी इबादत नहीं करते थे। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाल है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत है, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी अशरे में तर्ज़े अमल है कि आप इतनी इबादत आखिरी अशरे में करते थे कि आप उतनी इबादत किसी और अय्याम में नहीं करते थे। हाज़रीन गिरामी, होश के नाखून लेने की जरूरत है, होश के नाखून लेने की जरूरत है कि हम और आप कौन सी फहरिस्त में खड़े हैं, हम और आप कहां हैं इन सहाबा के मुकाबले में, हम और आप कहां खड़े हैं इन सलफ़े सालिहीन के मुकाबले में। सलफ़े सालिहीन के ताल्लुक से आता है, आखिरी आशरा जब शुरू होता, आखिरी आशरा एक सहाबी के ताल्लुक से आता है। उन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं मस्जिद नबवी से, मदीना से बहुत दूर रहता हूँ, मेरी बस्ती बहुत दूर है, मैं एक देहात में रहता हूँ, आप मुझे ये हुक्म दीजिए, मुझे ये मशवरा दीजिए कि कौन सी ताक रात में मैं आपके साथ आके मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ लूँ। इससे मालूम क्या हुआ? इस हदीस से मालूम यह हुआ कि नफिल नमाजें, सुन्नत नमाज घर में पढ़ना अफजल है, लेकिन खास तौर पर क़ियामुल लैल, वो भी आखिरी आशरे में मस्जिद में जमात के साथ पढ़ना अफजल है। वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते नहीं, अपने घर में पढ़ लो, नफिल नमाज घर में पढ़ना अफजल है। लेकिन जब उस सहाबी ने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, मैं कौन सी रात आकर आपके पीछे मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ लूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? 23वीं रात को आ जाना। कौन सी रात को? 23वीं रात को आ जाना, दूसरी ताक रात को आ जाना। वो सहाबी असर के वक्त आते हैं, वो सहाबी असर के वक्त आते हैं और मालूम है कब निकलते हैं मस्जिद से? असर के वक्त आकर अल्लाह की इबादत और रियाजत में लगे रहते हैं, आपके साथ क़ियामुल लैल, तरावीह भी पढ़ते हैं, फजर की नमाज भी पढ़ते हैं, उसके बाद सूरज तुलू होने के बाद फिर मस्जिद से निकलते हैं। यह है सहाबी की हालत, यह है सहाबा की हालत कि ताक रातों की किस तरह वो कद्र किया करते थे, ताक रातों को कैसे जिंदा किया करते थे, ताक रातों में वो कैसी इबादतें किया करते थे। आज हमारा हाल क्या है? अफसोस होता है कि इस आखिरी आशरे में भी क़ियामुल लैल में, तरावी में 3 सफ भी मुकम्मल नहीं होती। ये मुसलमानों की हालत है,
ये मुसलमानों की हालत है, ये मुसलमानों का तर्ज अमल है, ये मुसलमानों की इबादत है कि ये आखिरी अशरा जो हमसे अभी चंद दिनों में रुखसत होने वाला है, ये महीना बिल्कुल खत्म होने वाला है, लेकिन फिर भी आज भी हम बेदार नहीं हुए हैं, आज भी हम बेदार नहीं हुए, हमको एहसास नहीं है रमजान की मकाम व मर्तबे का, हमको एहसास नहीं है लैलतुल कद्र की आज़मत का। मेरे भाइयों, होश के ना खोल लो, अभी जो अय्याम बचे हैं इन अय्याम की कद्र कर लो, इन अय्याम की कद्र कर लो, इन ताक रातों की कद्र कर लो। अगर आपने इन ताक रातों के अंदर जैसे आज तक अभी ऐसे ही सारी रातों को जाये कर दिया है, अगर आपने ताक रातों लैलतुल कद्र को आपने खो दिया तो अल्लाह की कसम मैं कहता हूं आप अल्लाह की निगाह में बदबख्त हो जाएंगे, अल्लाह की निगाह में बदनसीब ऐसे लोग हो जाएंगे, ऐसे लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन के हर खैर से महरूम हो जाएंगे, ऐसे लोग अल्लाह की खैर को, अल्लाह की भलाई को, अल्लाह की रहमत को, अल्लाह की बरकत को नहीं हासिल कर सकते। जो लैलतुल कद्र की खैर से महरूम हो गया वो हकीकत में अल्लाह की निगाह में हर तरह के खैर से महरूम हो। लैलतुल कद्र की अज़मत को पहचानो, लैलतुल कद्र के मकाम को पहचानो, लैलतुल कद्र को अपनी इबादत के जरिया जिंदा करो। घूम फिर कर नहीं ये रात जागनी है मेरे भाइयों, खाने पीने की रात नहीं, ये रात इबादत की रात है, ये रात अल्लाह की रियादत की रात है, ये रात दुआ व मुनाजात की रात है, ये रात कुरान की तिलावत की रात है, ये रात हर तरह के खैर में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की रात है। हाँ, आखिर आप कब तक ऐसे सोएंगे? आखिर आप कब तक अपनी आंखें बंद रखेंगे? कब आप जागेंगे? कब आप बेदार होंगे? कब आप क़ियामुल लैल के लिए अपने आप को तैयार करेंगे? कब आप फराइज के लिए अपने आप को आमादा व कमर बस्ता रखेंगे? आखिर कब तक सोएंगे? अब तो उठो, अब तो उठो, बेदार हो, इन ताक रातों को अपनी इबादत के जरिया जिंदा करो, इन 10 रातों को गनीमत समझो, वरना ये देखते ही देखते जिस तरह 20 रमजान गुजर गए ये 10 रातें भी गुजर जाएंगी। हाज़िरीन गिरामी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है, अबू दर ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, मन अहसन फ़ीमा बक़िया गुफ़िर लहु मदा। ऐ लोगों, जो अपने बाकी अय्याम को अच्छे से गुजारते हैं, जो अपने बाकी अय्याम को, अपनी जिंदगी के बकिया शबो रोज को जो इंसान अल्लाह की इताअत में गुजारता है, अल्लाह उसके पहले की जो जिंदगी में जो उसने गुनाह किए हैं, जो कोताहियां की हैं, जो गफलत बरती है, अल्लाह उन गुज़श्ता कोताहियों को माफ कर देगा अगर आखिरी जिंदगी में आपने अच्छा किया। लेकिन वमन असा फीमा बकिया, अभी 40 साल 50 साल जो जिंदगी अभी तक गुनाहों में मासियत में गुजारी है, ये 10-20 साल की जिंदगी आखिर की अगर गुनाहों मासियत में गुजारेगा तो अल्लाह पहले की जिंदगी की भी पकड़ करेगा और आखिर की जिंदगी की भी पकड़ करेगा। लेकिन आखिर हमारा अंजाम हमारा अच्छा हुआ तो इब्तिदा के जो गुनाह है अल्लाह उनको भी माफ करेगा, लेकिन अंजाम हमारा अगर बुरा हुआ तो शुरू से लेकर आखिर तक जितने गुनाह हैं सब गुनाहों की पकड़ अल्लाह रब्बुल आलमीन करेगा। ये 20 रमजान में जो कोताहियां की हैं, ये 20 रमजान में हमने जो गफलत बरती है, ये 20 रमजान में जो हम ख्वाबे खरगोश में मुब्तला थे, अगर हम इन 10 रातों को, इन 10 दिनों को अगर हम किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह के मुताबिक गुजार लें, अगर हम इन 10 रातों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक गुजार लें, ये 20 रमजान में जो कोताहियां हुई, ये जो 20 रमजान में गफलतें हुई, ये जो 20 रमजान में हमसे सुस्ती हुई है, अल्लाह उनको माफ कर सकता है। लेकिन अगर ये आखिरी 10 दिनों को अगर हमने गफलत में गुजारा, लापरवाही में गुजारा, अल्लाह की इबादत और रियादत में नहीं गुजारा, तो ये समझ लीजिए इन 20 दिनों के भी अल्लाह पकड़ करेगा और इन 10 दिनों के भी अल्लाह पकड़ करेगा। लिहाजा ये बकिया जो अय्याम है 10 दिन, इनको अच्छे से गुजारने की जरूरत है, इनमें कसरत से नेक अमाल करने की जरूरत है, इनमें कसरत से अल्लाह की इबादत करने की जरूरत है, वरना अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरी जिंदगी का हिसाब आपसे लेगा। अंजाम अगर इब्तिदा अच्छा नहीं, अगर हमारी इब्तिदा और शुरुआत अच्छी नहीं हुई है तो कम से कम उसका अंजाम तो अच्छा करें, उसका अंजाम तो अच्छा करें। हमने माह रमजान का इस्तिकबाल अच्छे से नहीं किया अगर, तो कम से कम उसको अलविदा तो अच्छे से कहें, उसको अलविदा तो सलफ के तरीके से कहें हम लोग। अगर इब्तिदा भी हमारी अच्छी नहीं, इंतहा भी अच्छी नहीं, अगर इस शुरुआत भी हमारी अच्छी नहीं और उसका अंजाम और इख्तिताम भी अच्छा नहीं, तो आप समझ लीजिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी पूरी जिंदगी का एक एक सेकंड का हिसाब लेने वाला है। हादिरीन गिरामी,
मैं ये कहना सिर्फ यही चाहता हूं कि इन ताक रातों को, इन 10 दिनों को, इन 10 रातों को गनीमत समझो। इन 10 रातों को अल्लाह की इबादत जितनी हो सके, जितनी कर सकते हैं हमको करना चाहिए, वरना वो ऐसे ही देखते देखते गफलत में, सुस्ती में, ऐसे ही ये सारी चीजें, ये सारे रमजान, ये सारी 10 रातें, ये सारे आखिरी 10 दिन ही गुजर जाएंगे और हम कुछ नहीं हासिल कर पाएंगे। आखिर में हमको कफ़े अफसोस मलना पड़ेगा, हमको नदामत और शर्मिंदगी होगी। काश हमने और जरा तिलावत कर ली होती, काश हमने और जरा अल्लाह की इबादत कर ली होती। मेरे भाइयों, काश करने से कुछ नहीं होने वाला है, करने से होता है, नहीं करने से कुछ नहीं होता है। आप ऐसे बैठे रहें, उम्मीदें लगाते रहें कि हाँ इतने पारे की कुरान हम पढ़ लेंगे, इतने पारे की तिलावत हम कर लेंगे, इतनी इबादतें कर लेंगे, इतना खैरात कर लेंगे। उम्मीद लगाने से कुछ नहीं होता, करके दिखाओ, करके दिखाओ। इन 10 दिनों में अल्लाह की इबादत करके दिखाओ, अपने आप को जिंदा होने का सबूत दो कि हाँ हमारे दिलों में इस्लाम की लज्जत अभी बाकी है, हमारे दिलों में ईमान की हलावत अभी भी मौजूद है। अगर आप इन 10 रातों को ऐसे ही गफलत से गुजार देंगे तो आप अपने किरदार से दुनिया वालों को, अल्लाह को यह वादे करेंगे कि हमारे दिलों में इस्लाम की कोई हैसियत नहीं, रमजान का कोई मकाम नहीं, रमजान का कोई मर्तबा नहीं। इन 10 दिनों की, इन ताक रातों की, इस लैलतुल क़द्र की हमारे दिलों में कोई अहमियत नहीं, कोई आदमत नहीं। हाज़रीन गिरामी, सिर्फ जरूरत इस बात की है कि इन 10 दिनों को अल्लाह की इबादत और रियादत में गुजारने की कोशिश करें। हाज़रीन गिरामी, मैं आपसे सिर्फ यही गुजारिश कर रहा हूं कि इन 10 दिनों को गनीमत समझते हुए, चाहे वो दिन हो या रात हो, आप मुसलसल इबादत में अपने आप को लगाने की कोशिश करें। अगर आपने अभी जो कुछ भी कुरान की तिलावत की है, जो कुछ भी कुरान पढ़ा है, इन 10 दिनों में तिलावत को और बढ़ा लें। नफिल नमाजें, आप सुन्नत नमाजें जो भी अभी तक पढ़ रहे थे, आप उनमें इजाफा कर लें। आप अभी तक जो कोताहियां कर रहे थे कि आप तकबीर तहरीमा से नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, जब देखो 2, 4, 10 लोग आके आखिर में नमाज पढ़ते हैं। मेरे भाइयों, रमजान की तो कदर करते हुए तकबीर तहरीमा से जमात से नमाज पढ़ लेना चाहिए। साल भर तो हम ऐसे ही अपने मन के हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से जब चाहते हैं नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन रमजान की अहमियत का तो समझो, रमजान की अहमियत को जानो। कम से कम रमजान के महीने में बाजमात नमाज पढ़ने की कोशिश करो। कितनी बड़ी खैर से आप महरूम हो रहे, आपको अंदाजा नहीं है। कल क़यामत के दिन आपको अफसोस होगा, काश रमजान की मैंने कदर कर ली होती। इमाम इब्नुल जौज़ी रहमुल्लाह फरमाते हैं कि जब ये जो कब्र में जो लोग मदफून हैं, जो कब्र में जिनको दफन कर दिया गया है, अगर उनसे कहा जाए तमन्नो, तुम आरजू करो, तुम क्या चाहते हो मांगो, तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की जाएगी। लतमन्नौ यौमम मिन रमजान, तो कब्र में जो लोग मदफून हैं वो कहेंगे काश रमजान का एक दिन हमको मिल जाता तो बस काफी होता, रमजान का सिर्फ एक दिन हमको फिर से मिल जाता तो काफी होता। हम हैं कि अल्लाह ने हमको रमजान का पूरा महीना दिया, रमजान के महीना देने के साथ अल्लाह ने हमको सेहत दी, आफियत दी, ताकत दी, कुव्वत दी, जिंदगी के हर सामान हमको फराहम किए, लेकिन हमको कोई कदर नहीं है। हमको रमजान के अय्याम की कदर कुछ भी नहीं है। इशा की नमाज खड़ी होती है, कितना अफसोस होता है, दर्द होता है ये बात बोलते हुए कि एक सफ भी हमारी मुकम्मल नहीं होती। रमजान के महीने में भी एक सफ हमारी मुकम्मल नहीं होती। तरावी की नमाज शुरू होती है, लोग पता नहीं कहां घूम रहे होते हैं। 1 घंटा अल्लाह के लिए हम क़यामुल लैल नहीं कर सकते, कैसे अल्लाह के सामने खड़े होंगे कल मैदान महशर में? जरा सोचिए तो, गौर तो कीजिए तो कि अल्लाह के सामने हमको इसी तरह खड़ा होना, वहां कोई नहीं होगा अल्लाह और हमारे अलावा, अल्लाह की जात के सामने हमको खड़ा होना। यहां प्रैक्टिस कर लीजिए अल्लाह के सामने खड़े होने की, अल्लाह के सामने खड़े होने की यहां आप प्रैक्टिस कीजिए, वहां खड़ना आसान होगा। अगर आज यहां आप खड़े नहीं हुए तो अल्लाह के सामने आप ठहरने की ताकत नहीं रख सकते। जिस तरह मुनाफिकीन अल्लाह के सामने नहीं खड़े हो सकेंगे, इसी तरह उन लोगों का भी हाल होगा जो यहां मस्जिदें वीरान रखते हैं, मस्जिदों में अल्लाह के सामने बाजमात नमाज पढ़ने के लिए अपने आप को तैयार और आमादा नहीं कर पाते। हाज़रीन गिरामी, तो मैं ये कह रहा था कि जो कब्र के अंदर मदफून है, अगर उनसे कहा जाए क्या चाहिए तुमको मांगो,
तुम तमन्ना करो। वो लोग कहेंगे काश हमको रमजान का एक दिन मिल जाता, रमजान का एक दिन हमको फिर से नसीब हो जाता तो हमारे लिए काफी होता। अल्लाह अकबर, क्या अजमत है रमजान की, क्या मकाम है रमजान का, क्या मर्तबा है रमजान का। और वो ताक़रातें उसकी आज़मत का तो मत पूछो, उसकी आज़मत, उसके मकाम और मर्तबे का सवाल तो मत पूछो। अंदाजा भी कोई नहीं लगा सकता कि उस रात की आज़मत क्या है, उस रात का मकाम और मर्तबा क्या है। मेरे भाइयों, कदर कर लो इन 10 दिनों की, इन 10 दिनों की कदर कर लो, वरना अंजाम अगर हमारा अच्छा नहीं हुआ तो कल क़यामत के दिन हर अमल का हिसाब अल्लाह की बारगाह में हमको देना होगा। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन आखिरी 10 दिनों की कदर करने की तौफीक दे। अल्लाह हम तमाम मुसलमानों को इन ताक़रातों की अज़मत और मंजिलत पहचानने की तौफीक दे। अल्लाह इन ताक़रातों को हम तमाम मुसलमानों की इस बात की तौफीक दे कि हम क़यामुल लैल में गुजारें, हम दुआ व मुनाजात में अल्लाह ये रात गुजारें, हम कुरान की तिलावत में गुजारें, अल्लाह के ज़िक्र व अज़कार में गुजारें। अल्लाह हमको तो इस बात की तौफीक दे कि जिस तरह सलफ़ सालिहीन हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन 10 रातों को इबादत अंजाम देते थे, उसी तरह इबादत करने की हम तमाम लोगों को तौफीक दे। आमीन। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल